ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ परेशानी तो हुई जरूर, लेकिन कहते डिलीवरी नॉर्मल। बच्चा होता है और माँ जो होती है वो उसकी हड्डी कमज़ोर होती है। उसने अपनी जवानी में मतलब जो यूथ एज होती है, एडोलेसेंट एज, जब उसकी बोन्स बन रही होती हैं तब उसने सन का एक्सपोजर नहीं अच्छा लिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होती है, बोन्स उसकी छोटी होती है, बच्चा फंस जाता है। तो ऐसे वाले पेशेंट्स जो हैं वो खाना पीना उस समय अच्छे नहीं कर गए, बाद में कहेंगे कि डॉक्टर कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी कर दे, कैसे करा देंगे। ਬੇਬੀ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 25-26 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 32 साल ਦੀ एज भी मैरिज हो, क्या ये भी कह सकते हैं? को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका इंसिडेंस 15% पर आ जाए तो आप उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार रहो कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मर भी सकते हैं। आज ही सुबह मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसने मुझसे बात बोली कि मैडम आप मेरा जो है बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, आप हमारा सिजेरियन कर देना। मैंने कहा बेटा देखो अभी भी 1.5 महीना बचा है तुम्हारी डिलीवरी में, तुम कोई और जगह पे सेलेक्ट कर लो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चाहिए। मेरे को इसी महीने एक बहुत बड़े ऑफिसर हमारे स्टेट के, उनकी वाइफ ने एक वीडियो भेजी, बिल्कुल हमारे टॉप ग्रेड ऑफिसर की वाइफ की बात बता रही हूँ मैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं खुद भी। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी कि मैंने मैडम अपनी बेटी के लिए वो वैक्सीन के बारे में पूछ रही थी, इसी वैक्सीन के बारे में, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैंने कोई ये वीडियो आई है, जो वीडियो जो है बहुत लाउडली ये बात कह रही थी कि ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है इसके ऊपर हमारे को गिनी बिग्स की तरह हमसे ट्रीट किया जा रहा है और लोग ट्रायल ले रहे हैं, और ये वैक्सीन और कोविड की वैक्सीन ये सब जो हैं एक मिथ है। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਫੁਟੇਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ ਰਵੀ ਫੁਟੇਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਾਇਨੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਦਿਨ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਨਲੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਨਰਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-100 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 200, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ 27। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 12।
ਮਦਰ ਦਾ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 2000 1 ਲੱਖ ਪਰ 1 ਲੱਖ ਤੇ 2000 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਔਰਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 97 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ 70 ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਇਰ? ਇਹ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ 1-2 ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੂਜਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਲੈਮਜ਼ੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ OT 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਐਨਐਸਥੈਟਿਸਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ OT ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਡੈਥ ਔਨ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਸਮਝਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੂਜਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਅਗਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਵਾਕਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 90% ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੁਝ 10% ਹੈਗੇ, 10% ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ मिल जाएंगे, ਤੁਹਾਡੀ बिजनेस कम्युनिटी 'ਚ ਤੁਸੀਂ देख लो 10% ब्लैक शीप्स आर ऑलवेज देयर। उससे आप रेट नहीं कर सकते हो कि आपके पास 9 महीने का समय मिलता है, आप अपने अच्छे से अपना डॉक्टर सिलेक्ट करिए। आज ही सुबह मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसने मुझसे बात बोली कि मैडम आप मेरा जो है बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, आप हमारा सिजेरियन कर देना। मैंने कहा बेटा देखो अभी भी 1.5 महीना बचा है तुम्हारी डिलीवरी में, तुम कोई और जगह पे सेलेक्ट कर लो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चली। ये कैसे देखो सोसाइटी आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेफर करती कि सिजेरियन कर दी? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ रहेगी ਜਿਹੜੀ न्यू जनरेशन है उन्होंने? बेसिकली आई वुड से कि सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ने का कारण, ये मैं आपको बिल्कुल 100% की बात बता रही हूँ जो शायद इस पूरे कॉन्वर्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सिजेरियन इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ गया पहले से। WHO के हिसाब से करीब 15% के आसपास का एक इंसिडेंस होना चाहिए। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास का इंसिडेंस है सिजेरियन का, और जो अर्बन सोसाइटी है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50% का है, और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 45-50%, मेरे अपने हॉस्पिटल में भी 40% का इंसिडेंस है सिजेरियन का। ठीक है, उसके रीजंस आपको मैं बता रही हूँ कि क्या है। मेरे यहाँ पर क्यों 15% नहीं है WHO का? एक तो कारण ये है कि मेरा रेफरल सेंटर है, जो भी थोड़ा हायर सेंटर्स होते हैं जिन पे रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं, तो 10-15% तो उसकी वजह से ही बढ़ जाता है। अब मेरे पास हाई BP वाला पेशेंट ही आएंगे सारे, नॉर्मल पेशेंट आ ही नहीं रहा है मेरे पास में। IVF यानी कि ਤੁਸੀਂ ਚੈलेंज ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? IVF वाले पेशेंट्स आते हैं, मतलब जनरली कॉम्प्लिकेटेड, हाई ब्लड शुगर, हाई बच्चे का साइज बड़ा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पेशेंट कोई वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो गई, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने रेफर किया है, तो वो वाले पेशेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं, तो नेचुरली वो वहाँ से बच्चे ने पॉटी कर दिया, बच्चे की जान को
खतरा है, वो हमारे पास में आया है, होगा ही उसका सिजेरियन। मैं उन पेशेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लो रिस्क वाले पेशेंट्स की अगर बात करूँ तो उनमें भी हमारा 20-25% के करीब इंसिडेंस होगा सिजेरियन का। क्यों हमारा 20-25% है और क्यों हमारा 15% नहीं है, इसको मुझे आंसर करना है। उसका कारण है हमारी सोसाइटी। बिल्कुल ही हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। आजकल लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन बर्दाश्त नहीं है। मैं अगर कहूंगी भी कि मुझे तुम्हारे साथ में ट्रायल लेना है, बच्चे ने पॉटी करी है लेकिन अभी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद इससे बच्चा बच जाएगा, उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं ऐसे 10 बच्चे पैदा करूंगी तो उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो आईसीयू में जाएगा और उस बच्चे को 6 दिन कॉम्प्लिकेशन में भी रहना पड़ सकता है और हो सकता है कि उस बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सोसाइटी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका इंसिडेंस 15% पर आ जाए तो आप उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार रहो कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मर भी सकते हैं, कुछ माँ ऐसी रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। अच्छा, मेरा क्या अपना फ्रेंड सा ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜ਼रूर, लेकिन कहते डिलीवरी नॉर्मल हो गई। मैं बता रही हूँ आपको, एक्सेप्ट वो वाले पेशेंट्स जिसमें कि आवल नीचे है, प्लेसेंटा नीचे है या पेशेंट ब्लीड कर रही है, वो वाले पेशेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी ज़्यादातर पेशेंट्स आपके डिलीवर कर जाएंगे नॉर्मली। जैसे कि बच्चे ने पॉटी कर दी, जैसे कि बच्चे की धड़कन कम हो गई। क्या हो जाएगा अगर बच्चे की धड़कन कम हो जाएगी, थोड़ी और कम हो जाएगी, डिलीवरी तो नॉर्मल हो ही जाएगी, बट बच्चा पैदा होते समय मर जाएगा, इसके चांसेस 50% हैं। लेकिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वाला जिस पेशेंट की आप बात कर रहे हो, उसकी डिलीवरी मर जाए, उसकी डिलीवरी हो गई, प्रॉबेबली उस डॉक्टर ने, मेरे को ऐसा लगता है कि उसने इसलिए बोला होगा कि बच्चे ने थोड़ी बहुत पॉटी करी होगी और वो पेशेंट जो है, डॉक्टर नहीं रिस्क लेना चाहता कि बच्चा जो है वो बाद में, हमें अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई बच्चा मेरे यहाँ से पैदा हुआ है और उसका कोई मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, कोई बच्चा बहुत बड़ा हो जाए। आज एक कॉम्प्लिकेशन आजकल के ज़माने में एक और हो गई है। अब जो है फीमेल्स की पेल्विस मीन्स वो बोन जहाँ से निकल के बच्चा बाहर निकलता है, वो पेल्विक गर्डल बोन जो है, उसमें ऑस्टियोमलेशिया होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन ऑफ छोटी पेल्विस, बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया। खाता पीता बच्चा होता है और माँ जो होती है वो उसकी हड्डी कमज़ोर होती है, उसने अपनी जवानी में, मतलब जो यूथ एज होती है, एडोलेसेंट एज, जब उसकी बोन्स बन रही होती हैं तब उसने सन का एक्सपोजर नहीं अच्छा लिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होती है, बोन्स उसकी छोटी होती है, बच्चा फंस जाता है। तो ऐसे वाले पेशेंट्स जो हैं वो खाना पीना उस समय अच्छा नहीं कर पाएंगे, बाद में कहेंगे कि डॉक्टर कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी कर दे, कैसे करा देंगे हम। एक चीज़ होर, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿजेस ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 25-26 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ, क्या ये भी कह सकते हैं? ये भी यस जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाती है, आई वुड से गुड कट पॉइंट वुड बी 30। उसके बाद में जो हमारी टिश्यूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब आप समझ रहे, जैसे मैं अपना स्किन को उठा रही हूँ तो मेरी आज जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे 20 साल में इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्किन थी मेरी, राइट। वो एज के साथ में टिश्यूज़ बिकम लेस फ्लेक्सिबल। तो वो जब आपका बच्चा पैसेज लेता है नॉर्मल वजाइना से, तो उसको फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ मिलते हैं, तो उसमें बॉडी फिजियोलॉजी नॉर्मल होती है और एज बढ़ने के साथ में डेफिनेटली। एक चीज़ और, बेबी गोरा चिट्टा हेल्दी हो, इसलिए कोई टिप्स आते हैं या कोई? नहीं, ये वैसे आपका आउट ऑफ टॉपिक बात हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियरली बोल दूँ, ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम केसर खाएंगे तो हम बच्चा हमारा गोरा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होएगा। जैसे माँ बाप के जीन्स हैं वैसा ही बच्चा पैदा होएगा। कभी कभी माँ बाप काले हैं और बच्चा गोरा पैदा होएगा, उसका कारण सिंपली ये है कि बाप का बाप गोरा हो सकता है या माँ की माँ गोरी हो सकती है, कहीं से तो वो जीन आया है उसके गोरेपन वाला, हमारे खाने पीने से बिल्कुल नहीं होने वाला है। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? मैं कैंसर से पहले एक चीज़ बस आपकी सिजेरियन वाले पॉइंट को ज़रूर कवर करना चाहूँगी। वो ये कि आजकल की डेट में एक हमारे समाज ने हम डॉक्टर्स के ऊपर एक प्रेशर बना रखा है। बहुत सारे, आई वुड से 20% से 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमें प्रेशराइज करते हैं कि हमारा सिजेरियन कर दो। मैं ये चीज़ पर बात करना चाह रही हूँ कि आप डॉक्टर को प्रेशराइज मत करो, क्योंकि ऐसे में अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एक नॉर्मल डॉक्टर चांस ले लेगा कि नहीं इतना गंदा पानी तो बच्चा झेल लेगा, वो नहीं लेगा आपके शोर मचाने की वजह से। आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिजेरियन के भी अपने कॉम्प्लिकेशन यानी कि अपने आप डॉक्टर ना बने, कुछ थोपे ना, डॉक्टर अपने विवेक के सिजेरियन में एक कॉम्प्लिकेशन, आजकल के ज़माने में सिजेरियन बहुत ज़्यादा इजी सर्जरी मैं कहूँगी कि है। हम लोग जितनी तरह की सर्जरीज करते हैं उसमें सिजेरियन इज़ वन ऑफ द वेरी इजी सर्जरीज जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। सिजेरियन से मरीज मर जाए
ये बहुत कम होता है, बहुत कम है। बहुत कम होता है। लेकिन सिजेरियन की वजह से अगली प्रेगनेंसी में आपका प्लेसेंटा चिपक जाए या आप दोबारा प्रेग्नेंट ना हो या अगली प्रेगनेंसी में आपका स्कार फट जाए, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन हमेशा ये ट्रू नहीं होता है, लेकिन वंस अ सिजेरियन मोर चांसेस ऑफ फॉर द सिजेरियन इज अ ट्रूथ। सो इसलिए आप चॉइस से सिजेरियन प्लीज मत कराएं। ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ HPV वैक्सीन लिए सेपरेट फंड्स एलोकेट किए हैं। ठीक है, व्हाट इज HPV वैक्सीन? इट इज़ अ वैक्सीन जो HPV वायरस के इंसिडेंस को कम करता है, जिसके होने से यूट्रस के मुंह का कैंसर, जब मैं PG कर रही थी, मैं आपको बता रही हूँ, हमारा एक पूरा वार्ड था जिसमें कि कैंसर सर्विक्स के पेशेंट्स होते थे और हर महीने उसमें से 2-3 पेशेंट्स की मृत्यु होती थी। मैंने पता नहीं कितने ही पेशेंट्स मैनेज करे होंगे उस ज़माने में, और आज इस साल में मैंने सिर्फ एक ही सीवे सर्विक्स का पेशेंट देखा है। तो वो इतना ड्रामेटिक जो चेंज आया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा HPV वैक्सीनेशन रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा कंट्री, एक टाइम था जब ब्रेस्ट कैंसर पीछे था, सर्वाइकल कैंसर ही सबसे कॉमन कैंसर था। अब ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो गया है और CA सर्विक्स कम हो गया, बिकॉज वो प्रिवेंटेबल कैंसर है और वो वैक्सीन लगाने से, और वो वैक्सीन आप ज़्यादा एज पर भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि वो वैक्सीन आप तब लगाएं जब आपकी लड़की का फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर होने से पहले, मतलब शादी होने से पहले। आइडियल है कि आप 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ही लगवा दें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग, जिसके भी घर में बच्ची है 9 साल से 14 साल के बीच में, आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿलिटीज है? हाँ, किसी भी बच्चे वाले डॉक्टर के पास में चले जाओ, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में चले जाओ, थोड़ा भी ठीक सेंटर है, मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आज की डेट में चले जाओ, प्रॉबली वहाँ पर भी ये वैक्सीन ईजिली अवेलेबल है। बहुत महंगी भी नहीं है वैक्सीन, प्रॉबली 2000 के आसपास की उसकी कॉस्ट है, और 3 डोजेस से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। मेरे को आपको इसी बात से मुझे याद आया, मेरे को इसी महीने एक बहुत बड़े ऑफिसर हमारे स्टेट के, उनकी वाइफ ने एक वीडियो भेजी, बिल्कुल हमारे टॉप ग्रेड ऑफिसर की वाइफ की बात बता रही हूँ मैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं खुद भी। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी कि मैंने, मैडम अपनी बेटी के लिए वो वैक्सीन के बारे में पूछ रही थी, इसी वैक्सीन के बारे में, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मैंने कोई ये वीडियो आई है, जो वीडियो जो है बहुत लाउडली ये बात कह रही थी कि ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, इसके ऊपर हमारे को गिनी बिग्स की तरह हमसे ट्रीट किया जा रहा है और लोग ट्रायल ले रहे हैं, और ये वैक्सीन और कोविड की वैक्सीन ये सब जो हैं एक मिथ हैं, और इनको लगाने से जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, इस टाइप की बहुत सारी मिथ वाली बातें थी उसमें। मैं उस लेडी को भी आंसर करना चाह रही हूँ और सारे समाज को भी, कि ये मजाक में नहीं हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम हो गया है। इसके पीछे बहुत सारी गवर्नमेंट मशीनरी, बहुत सारे डॉक्टर्स, और डॉक्टर से ज़्यादा बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने जाके वैक्सीन लगाई है, जिन्होंने कितने लोगों को अवेयरनेस करी है। आपके जैसे जर्नलिस्ट हैं जो ये सब बातों को उठा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जाके अपने बच्चियों को वैक्सीन लगाएंगे और वो बच्ची को आगे चल के यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस कम हो गए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि करेक्ट चीज़ क्या है। जब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, जैसे उस लेडी ने, जिस ऑफिसर की बात करें, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्योंकि वो बड़ी अच्छी सी बनी हुई वीडियो थी और बड़ी ऑथेंटिक लग रही थी। उसने इसलिए मुझसे पूछा कि मैम आप बताओ, हमें पता है कि आप हमें गलत नहीं बताओगे। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बिल्कुल भी इस चीज़ पर मत जाओ, चुप करके अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाओ। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।